Hello students, how are you? Welcome back again to our EVS 2 period. Let's start our new chapter. But before starting new chapter, I want to talk with you about your studies. I'm not so happy about your studies, about your homework, because very few students are sending me the homeworks. What about the rest students? Please students, pay attention on your study. Read the lesson again and again and give me and find out your answer. Before I start, I will give you a recap of previous chapter. What is the previous chapter? Chapter number 1. That is, what is a history? History means a science that tells us about event in the past. Point 2, the scientific method of the history. Point 3, history and us. And the fourth point is the past and the future. Okay. Now, in this lesson, now I am going to start new lesson. Lesson number 2. That is history and the concept of history. So, history, what you studied last lecture? History is a science that tells us about the events in the past. Here also, I divide this lesson in 4 points. First point is the division of time and the timeline. Second is measurement of time and the method of measuring the time. Third one is historical period. Fourth one is scientific method of measuring time and establishing age or dating. Now, first point is I am going to explain here. Division of time and the timeline. There are different methods of reckoning time. There are different methods of reckoning times. Reckoning means calculating. There are different methods of calculating the time. Time is continuous. Time is continuous. Time कैसा है? Continuous. Time continuous means never ending. But for our convenience, we divide it into periods. लेकिन हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपने सुविधा के लिए इसको डिवाइड किया है, पीरियड्स में डिवाइड किया है. द मेथड दैट वी यूज फॉर रेकनिंग टाइम डिपेंड्स ऑन आवर पर्पज. टाइम का जो कैलकुलेशन हमने किया है वो किसके ऊपर डिपेंड है? अपने पर्पज के हिसाब से. फॉर डिवाइडिंग इट एंड मैनर इन विच वी डू इट. मैनर मीन्स मेथड. ओके. फॉर एग्जाम्पल, एट सनराइज वी से इट इज़ मॉर्निंग नाउ. सनराइज में हम लोग क्या बोलते हैं? सुबह जो होती है तो हम लोग बोलते हैं कि इट इज़ मॉर्निंग नाउ. द डे हैज़ बिगिन. ओके. जैसे मॉर्निंग होती है, हमारी तैयारी होती है, स्कूल में जाओ, ये करो, वो करो, है कि नहीं? एंड एट सनसेट वी से इट इज़ इवनिंग नाउ. सनसेट होता है तो बोलते हैं हम लोग इवनिंग हो गई. सुन इट विल बी नाइट. उसके बाद क्या होती है? रात होती है. एट द एंड ऑफ द डे इट बिकम डार्क एंड इट इज़ नाइट. This means that we divide the day into 2 parts, day and night. इसका मतलब क्या होता है? हमने टाइम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. वन इज डे एंड द सेकंड वन इज नाइट. डे टाइम में को भी हमने डिवाइड किया है मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट. ओके. तो हम लोग ने मॉर्निंग में क्या क्या काम करना है, आफ्टरनून में क्या करना है, उसको भी डिवाइडेशन किया रहता है. सो दिस मीन्स दैट we divide the day into 2 parts, that is day and night. अभी डे और नाइट क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ आवर अर्थ. आवर अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस. अपनी अर्थ उसके एक्सिस के इधर सेंटर पॉइंट, एक्सिस में तो सेंटर पॉइंट्स में रोटेट होती है ना सर्टन स्पीड, एक स्पीड में. ओके. नॉट सो फास्ट, नॉट सो स्लो. ओके. रोटेशन मीन्स व्हाट? सर्क्युलर मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड एक्स or center. What is the rotation? Rotation means circular movement of an object. जो object है, for example this is the, look here, this is the pencil and this is the x. Okay, point, center point. This pencil is rotating like this on a center point. Okay, this pencil is rotating on this point. Rotating means circular movement of an object on a circular movement of an object around a center or a x. This is called a rotation. Similarly, it also rotates around the sun.
उसी तरह वो क्या करती है, सन के चारों तरफ भी रोटेट होती है। फॉर एग्जाम्पल लुक हियर, दिस इज अ सन, क्या है ये, सन है, एंड दिस इज आवर अर्थ, दिस इज आवर अर्थ। ओके, द अर्थ रोटेट इटसेल्फ एंड रिवॉल्यूशन, रिवॉल्व मतलब सन के चारों तरफ भी ऐसे घूमती है, उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। व्हाट वू से दिस, रिवॉल्यूशन। ओके, once again, our earth rotate around its axis at a certain speed. Clear what is the rotation? Rotation means circular movement of an object around a point or an axis. Similarly, it also revolves around the sun. उसी तरह वो सन के चारों तरफ भी रिवॉल्व होती है। The sun has its own lights. We receive lights from the sun. ये भी आपको पता है, सन को खुद की लाइट होती है और हमारी अर्थ को लाइट कहाँ से मिलती है, अर्थ से। However, we see lights only in day time. लेकिन फिर भी हमें लाइट कब मिलती है, दिन में। ओके, नाइट्स आर डार्क, हाउ डज हैपन, लेकिन रात को तो लाइट नहीं होती है, ऐसे क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। क्यों होता है ऐसे? अर्थ के रोटेशन की वजह से। एज द अर्थ रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस, दैट पार्ट ऑफ इट्स सरफेस विच टर्न टूवर्ड द सन बिकम राइट। जैसे अपना अर्थ रोटेट होती है, जो पार्ट सन तो एक ही प्लेस पे होता है, जैसे अर्थ रोटेट होती है, जिसका उसका जो पार्ट सन की तरफ आता है उसको बोलते हैं विच टर्न अराउंड द सन बिकम ब्राइट। द पार्ट इनटू डार्कनेस, जो पार्ट सन की तरफ रहता है उधर दिन होता है, और जो अपोजिट पार्ट होता है वहाँ पे डार्कनेस। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। अर्थ को वन रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 24 आवर्स लगते हैं। दीज 24 आवर्स आर अप्रॉक्सीमेटली डिवाइडेड इंटू 12 आवर्स ऑफ डे टाइम एंड 12 आवर्स ऑफ नाइट। अ पीरियड ऑफ डे टाइम एंड द फॉलोइंग नाइट टुगेदर मेक वन डे। तो 24 आवर्स का डे होता है, उसमें 24 आवर्स की नाइट होती है और 24 आवर्स का डे, और दोनों को टुगेदर, हाँ, द पीरियड ऑफ डे टाइम एंड द फॉलोइंग नाइट टुगेदर मेक अ डे। आपको पता है 7 डेज मेक, फ्रॉम मंडे टू संडे मेक 1 वीक। 1 वीक में कितने दिन होते हैं? 7, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। 2 वीक्स मेक फोर्टनाइट। फोर्टनाइट मीन्स 15 डेज। 15 डेज में कितने दिन होते हैं, कितने वीक्स होते हैं? 2। 4 वीक मेक मंथ। 4 वीक का क्या होता है? मंथ होता है। 12 मंथ मेक्स अ ईयर। इन दिस मैनर वी रेकन टाइम इन बिगर एंड बिगर यूनिट। इस तरह से हम लोग टाइम को क्या करते हैं, बिगर एंड बिगर यूनिट में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है 7 डेज का वीक होता है, स्मॉल यूनिट। 2 वीक्स 15 डेज, 4 वीक्स मंथ, 12 मंथ ईयर। हाँ, like this we reckon time in bigger and bigger unit. 1 year is followed by another, and when 100 years go by, century is completed. इसी तरह से जब 100 years हो जाते हैं तो एक सेंचुरी कंप्लीट होती है। When 10 centuries, that is 1000 years are gone, a millennium is completed. इस तरह से 1000 years हो जाते हैं तो क्या एक पूरा मिलेनियम कंप्लीट हो जाता है। Such a method of dividing time is known as a unilinear division of time. ऐसी जो टाइम की डिवीजन होती है उसको बोलते हैं यूनिलिनियर डिवीजन ऑफ टाइम। हाँ, ओके। कॉमन एरा, दैट इज आवर क्रिश्चियन एरा। द यूनिलिनियर डिवीजन ऑफ टाइम years that follow one after the another are arranged in serial order. Okay, the unilinear division of time years that follow one after the other are arranged in serial order. In history,
Books also chain of in history. The book chain of the events that follow one after the another is presented in a linear and serial manner. आपको पता है हिस्ट्री में भी जो इवेंट्स होते हैं वो सीरियली फॉलो किए जाते हैं. दैट मीन्स पहले बर्थ शिवाजी महाराज, फॉर एग्जांपल शिवाजी महाराज, उनका बर्थ होता है, फिर उन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या किए उसका ये रहता है फॉलो. वन इवेंट्स फॉलोड द अनदर. फॉर दिस usually we refer to the common era, written in short as CE. CE means Christian era, or AD. AD means Anno Domini, which means in the year of our Lord. CE or AD, which means in the year of our Lord. The calendar we use today is based on a Christian era. Now call this कॉमन एरा. अपना जो कैलेंडर है वो क्रिश्चियन एरा पे डिपेंड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन एरा. दिस एरा बिगिन इन मेमोरी ऑफ जीसस क्रिस्ट. ये जो एरा स्टार्ट हुआ है वो किसकी मेमोरीज में है, जीसस क्रिस्ट. द फर्स्ट ईयर ऑफ दिस एरा इज द ईयर व्हेन इट्स बिगिन. इट इज शोन विद द नंबर. द ईयर आफ्टर द वन आफ्टर दैट आर इंडिकेट बाय द नेक्स्ट नंबर इन सीरियल ऑर्डर. The first 100 years, that is the first century of this era, is written as 1 to 100 CE or 1 to 100 AD. Okay. The period of the first millennium of this era is written as 1 to 1000 CE or 1 to 1000 AD. Okay. This much I am going to stop here. Remaining lesson I will complete it tomorrow. Read this much lesson and find out the questions and write the answers also. Okay.